مختصر حمد و صلات کے بعد ہمارے اوپر لوگوں کی طرف سے ایک الزام یہ لگایا جاتا ہے، یہ اہل بیت کی شان و عظمت کو نہیں مانتے، یہ اہل بیت کی فضیلت بیان نہیں کرتے۔ حالانکہ یہ بالکل جھوٹا الزام ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے عیسائی کہتے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے لوگ۔ تو ہمارا جواب کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں بھائی مانتے تو ہیں حضرت عیسیٰ کو، لیکن اس طرح نہیں مانتے جس طرح تم مانتے ہو۔ یعنی تم انہیں اللہ کا بیٹا بنا کے بیٹھے ہو، اللہ کا شریک انہیں تم نے بنایا ہوا ہے۔ ہم تو نہیں مانتے اللہ کا بیٹا، اللہ کا شریک۔ تو ہم اللہ کے فضل و کرم سے منہج اہل سنت پر قائم و دائم ہیں، اور منہج اہل سنت وہ یہ ہے، صحیح جو منہج اہل سنت کا وہ یہ ہے کہ ہر کسی کو مانا جائے، ہر کسی کی شان و عظمت کا اقرار کیا جائے، ہر کسی کی شان و عظمت کو بیان کیا جائے، لیکن شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے۔ یعنی کسی کی ذات کو اس طرح بڑھا دینا جس طرح کہ اللہ رب العزت نے وہ شان اس کی رکھی نہیں ہے، جس طرح خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، کہ تم مجھے اس طرح نہ بڑھا دینا جس طرح عیسیٰ ابن مریم کو ان کے ماننے والوں نے بنا دیا۔ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، بس بے شک میں اللہ کا ایک بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں، تم مجھے اللہ کا بندہ اور رسول کہنا۔ تو ہمیں میانہ روی سکھائی ہے دین اسلام نے۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے انبیاء کرام کو بھی مانتے ہیں، ہم صحابہ کرام کو بھی مانتے ہیں، ہم اہل بیت اور آل رسول کو بھی مانتے ہیں، ہم اولیاء اللہ کو بھی مانتے ہیں، لیکن ہم مانتے ہیں شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے۔ ہم کسی کو بھی اللہ کی صفات نہیں دیتے، ہم کسی کے متعلق یہ بس نہیں کہتے کہ جس طرح کہہ دیا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ مشکل کشا ہیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ حاجت روا ہیں، یا فلاں کو، یعنی وہ صفات دی جاتی ہیں جو خالصتاً اللہ کے صفات ہیں۔ ہمارا اختلاف یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں، جو اللہ کی طاقت اور اللہ کی قدرت ہے، اسے کسی اور میں داخل نہ کیا جائے۔ ہم کہتے ہیں مشکل کشا اللہ کی ذات ہے، ہم سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی دل سے عزت کرتے ہیں، ان سے دل و جان سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں، ان کی محبت کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، بلکہ اپنے ایمان کی جان سمجھتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا دیگر اہل بیت کے افراد ہوں، آل رسول ہوں، صحابہ کرام ہوں، ان کے پاؤں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما، ان کے پاؤں کی خاک ہمارے آنکھوں کا سرما، لیکن مشکل کشا اللہ کی ذات ہے، حاجت روا اللہ کی ذات ہے۔ یہ ہماری دعوت ہے، یہ ہمارا منہج ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ سب کی عزت کریں، سب کا احترام کریں، سب کی شان و عظمت کو بیان کریں، شریعت کے دائرے سے باہر نہ نکلیں۔ بس یہ ہماری دعوت ہے کہ اللہ کی وحدانیت میں فرق نہ آئے، اللہ کی توحید میں فرق نہ آئے، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو برابر نہ کریں، باقی ہر کسی کی شان و عظمت جو اللہ تعالیٰ نے اپنی اپنی جگہ کسی کو عطا کی ہے وہ بجا ہے، اور الحمدللہ ہم اسے بیان کرتے ہیں ہر سال موقع مناسبت کے اعتبار سے۔ اللہ کے فضل سے یہاں بھی پچھلے سال بھی 2-3 جمعے اہل بیت کی عظمت پہ، اہل بیت کی شان پہ میں نے بیان کیے تھے، اور صحابہ کرام کی عظمت کو بھی بیان کرتے ہیں، انبیاء کے فضائل بھی، نبی کریم علیہ السلام کی شان و عظمت کو بھی بیان کرتے ہیں۔ سب کچھ اللہ کے فضل سے ہم بیان کرتے ہیں اور مانتے ہیں، صرف لوگوں کو سمجھنے میں فرق ہے، اور لوگ جھوٹے الزامات لگاتے ہیں ہٹ درمی کی بنیاد پر۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو معاشرے میں ہمارے بارے میں زبانوں کے اندر عام ہے۔ اللہ کے فضل سے میں نے بیان کیا ہے کہ ہم سب کی عظمت اور شان کو مانتے بھی ہیں اور اس کو بیان کرتے بھی ہیں، صرف یہ بات ہم کہتے ہیں کہ شریعت کے دائرے سے باہر نہ نکلیں، اللہ کی وحدانیت میں فرق نہ آنے دیں، اللہ کی توحید میں فرق نہ آنے دیں۔ باقی جس کی جو شان اللہ تعالیٰ نے جسے جو دی ہے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، آپ کی لخت جگر ہیں، آپ کی بیٹی ہیں، آپ نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور الحمدللہ ہم بھی بیٹیوں والے ہیں،
हमें इस बात का एहसास होता है कि किस कदर एक बाप को अपनी औलाद से मोहब्बत होती है, और खास तौर पर बेटियों की मोहब्बत को नबी अलैहिस्सलाम ने उजागर किया, और खुद भी आपने करके दिखाई है अपनी बेटी के साथ मोहब्बत। और यही था ना हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने सैयदा फातिमा की मौजूदगी में अबू जहल जो आपका दुश्मन था उसकी बेटी को दूसरे निकाह का पैगाम भेजा। तो लोगों ने इस पर कहा कि अल्लाह के रसूल, हजरत अली आपके दुश्मन की बेटी से दूसरा निकाह करना चाहते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम गुस्से में आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की हम्दो सना बयान की, खुतबा दिया। वहां पर फरमाया कि मैं जो अल्लाह ताला ने इजाजत दी है किसी हलाल को हराम नहीं करता या हराम को हलाल नहीं ठहराता। यानी अल्लाह ने इजाजत तो दी है कि एक से ज्यादा शादियां 4 बंदा कर सकता है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल की बेटी और अल्लाह के रसूल के दुश्मन की बेटी एक घर में जमा नहीं हो सकती। और वहां पर आपने फरमाया कि मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने उसे अजियत दी उसने मुझे अजियत दी, जिसने उसे तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी। और सैयदा फातिमा रजी अल्लाह अन्हा आप इस्लाम इतनी मोहब्बत फरमाया करते थे। नबी इस्लाम का आखिरी वक्त है, आप दुनिया से जाने वाले हैं, मरजुल मौत के अंदर आप जो है वो मुब्तला हैं। सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा कहती हैं आपकी सारी अज़वाज आपके पास बैठी हैं। सैयदा फातिमा आई, सही बुखारी में सही मुस्लिम दोनों में मौजूद है। सही बुखारी में 6285, 6286 और सही मुस्लिम में 2450 नंबर पर यह हदीस है। सैयदा फातिमा रजी अल्लाह अन्हा आई तो नबी इस्लाम ने उन्हें अपने पास बिठाया और फरमाया मरहबा बेटी। पास बिठाकर आपने उनके कान में सरगोशी फरमाई, यानी खुफिया तौर पर एक बात की। सैयदा फातिमा रोना शुरू हो गए। फिर जब आपने देखा कि मेरी बेटी रोने लग गई है, फिर आपने एक और सरगोशी फरमाई, एक और उनके कान में बात की, उस पर वो मुस्कुरा पड़ी। तो सैयदा आयशा ने बाद में पूछा क्या मेरी बेटी फातिमा मुझे बताओ अल्लाह के रसूल ने तुम्हारे कान में क्या कहा कि तुम पहले रो पड़ी फिर हंस पड़ी। और मैं ये अल्लाह के रसूल का राज है, मैं इसको आपको नहीं बता सकता। फिर जब अल्लाह के रसूल की वफात हो गई, दुनिया से चले गए, फिर सैयदा आयशा ने पूछा कि मैं तुमसे सवाल करती हूँ, पूछती हूँ उस हक की वजह से जो मेरा तुम पर है, यानी एक माँ होने की हैसियत से मैं तुमसे पूछती हूँ कि मुझे वो बात तो बताओ कि जब अल्लाह के रसूल ने तुम्हारे कान में सरगोशी की थी तुम रो पड़ी थी, फिर सरगोशी की तो तुम मुस्कुरा पड़ी थी। तो फरमाया ए अम्मा जान, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे बाबा जान ने पहले जो सरगोशी फरमाई थी जिसकी वजह से मैं रोई थी वो ये थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे बाबा जान ने मेरे कान में कहा कि जिब्राइल हर साल एक दफा कुरान का दौर मेरे साथ किया करते थे रमजान में। इस साल जिब्राइल ने 2 दफा मेरे साथ कुरान का दौर किया है और मुझे इससे ये महसूस हो रहा है कि अब मेरा वक्त करीब आ गया, अब मेरी वफात होने वाली है। तो इस वजह से जो है वो मुझे रोना आ गया था। बेटी थी, बाप की जुदाई की जब खबर सुनी कि अब मेरे बाबा दुनिया से जाने वाले हैं और इतनी मोहब्बत करने वाले बाबा, इतना प्यार करने वाले बाबा दुनिया से जा रहे हैं, तो सैयदा फातिमा कहती मुझे इस पर रोना आ गया। तो फिर जब अल्लाह के रसूल ने देखा कि मेरी बेटी रो रही है, फिर आपने दूसरी जो सरगोशी फरमाई जिसकी वजह से मैं हंस पड़ी थी वो ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मेरे बाबा जान ने फरमाया था, ऐ मेरी लगते जिगर, ऐ मेरी बेटी फातिमा, क्या तू इस बात पर राजी नहीं है कि तू इस उम्मत की खवातीन की सरदार है। यानी अल्लाह ताला ने तुम्हें ये रुतबा और अजमत दी है कि इस उम्मत की जितनी खवातीन है उनकी सरदार है, तो उनकी सब खवातीन की तू सरदार है। और इसी तरह जन्नती औरतों की सरदार सैयदा फातिमा रजी अल्लाह अन्हा नबी अलैहिस्सलाम की बेटी, आपकी लगते जिगर। हजरत हुज़ैफा रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक फरिश्ता आसमान से आया मेरे पास जो आज से पहले कभी नहीं आया, और उसने मुझ पर सलाम पहले पेश किया और फरमाया अन्ना फातिमा सय्यदतु निसाई अहलिल जन्नह, कि ऐ अल्लाह के रसूल आपकी लखते जिगर, आपकी बेटी फातिमा जन्नती नौजवान, जन्नती औरतों की सरदार है। यानी वो अजमत दी अल्लाह ताला ने सैयदा फातिमा को। और इसी तरह सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा कहती हैं चाल ढाल में, चलने फिरने में, गोल गुफ्तार में, बोलने चालने में अल्लाह के रसूल के मुशाबे सबसे ज्यादा सैयदा फातिमा थी। आपकी बेटी सबसे ज्यादा अल्लाह के रसूल के मुशाबे थी, आपसे मिलती जुलती थी
आपके मुशाबे थी चलने फिरने में, कोलो गुफ्तार में। और फिर फरमाती हैं कानत इज़ा दखलत अलैहि क़ाम इलैहा फ़अख़ज़ बियदिहा वक़ब्बलहा। जब भी सैयदा फातिमा अपने बाबा जान से मिलने आती हैं अल्लाह के रसूल से, तो प्यारे पैगंबर का तरीकाकार क्या था, आप खड़े होकर अपनी बेटी का इस्तिकबाल करते और आप अपनी बेटी का हाथ पकड़ते, व अजलसहा फी मजलिसिहा, अपनी जगह पर अपनी बेटी फातिमा को बिठाते, फ़अख़ज़ बियदिहा व क़ब्बलहा, आपका अपनी बेटी का हाथ पकड़ते और अपनी बेटी को बोसा देते। यानी किस तरह अपनी बेटी का इस्तिकबाल किया जा रहा है। सैयदा फातिमा की शान व अजमत है कि दोनों जहानों का सरदार अपनी बेटी का इस्तिकबाल इस तरह करता है कि जब भी अपने बाबा से मिलने आ रही हैं, आप खड़े होकर आगे बढ़ रहे हैं, हाथ से अपनी बेटी को पकड़ रहे हैं, अपनी बेटी को बोसा दे रहे हैं और अपनी जगह पर प्यारे पैगंबर सैयदा फातिमा को बिठा रहे हैं। और फिर ये सिर्फ अल्लाह के रसूल नहीं, बेटी का भी यही तरीकेकार है। वकाना इज़ा दखला अलैहा, सैयदा आयशा कहती है, और सैयदा फातिमा का भी यही तरीका था। जब नबी अलैहिस्सलाम उन्हें मिलने जाते, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी को मिलने जाते, क़ामत इलैहि फ़अख़ज़त बियदिही फ़क़ब्बलतहु व अजलसतहु फ़ी मजलिसिहा। वही तरीकेकार कि वो भी खड़े होकर अपने बाबा का इस्तिकबाल करती, अपने बाबा जान का हाथ पकड़कर उनको अंदर लाती, अपनी जगह पर उन्हें बिठाती और आपको बोसा देती। कितना प्यार था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी बेटी सैयदा फातिमा रजी अल्लाह अन्हा से। इसी तरह सैयदना अलीयों, वो भी हमारे सरों का ताज हैं, उनके पाँव की खाक हमारी आंखों का सुरमा है। मैं पहले बता चुका हूं, हमारे ऊपर गलत इल्जाम लगाया जाता है कि ये अहले बैत को नहीं मानते, ये जनाब अहले बैत की शान नहीं बयान करते, ये अहले बैत की अजमत का इकरार नहीं करते। हम अल्लाह के फजल से अहले बैत आले रसूल सब की अजमत और फजीलत को मानते भी हैं, उसका बयान भी करते हैं। सिर्फ फर्क यह है कि हम ये कहते हैं कि यार शरीयत के दायरे से बाहर ना निकलें, अल्लाह की वहदानियत में फर्क ना आए, अल्लाह की तौहीद में फर्क ना आए, सैयदना अली को अल्लाह के बराबर ना करें, उन्हें मुश्किल कुशा ना कहें, उन्हें हाजत रवा ना कहें, क्योंकि ये अल्लाह की सिफात है। ये हमारा सिर्फ नजरिया और हमारा मनहज है। बाकी अल्लाह के फजल से हम अहले बैत की शान व अजमत को मानते हैं। सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु वो अजीम शख्सियत है कि जिन्होंने परवरिश पाई है आगोशे रसूल में, जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साये में परवरिश पाई है। सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु वो अजीम शख्सियत है कि अपने जिगर का टुकड़ा फातिमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली को दिया, यानी उनसे उनका निकाह किया सैयदा फातिमा का। जन्नती नौजवानों की, जन्नती औरतों की जो सरदार है, उनके खामंद है सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु। जन्नती नौजवानों के सरदार सैयदना हसन हुसैन, उनके वालिद है सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु। और प्यारे रसूल की आगोश में परवरिश पाने वाले हैं सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु। और नबी करीम ने कई मुकामात पर मुख्तलिफ आपको शान व अजमत और फजाइल से नवाजा है, जो कुरान और सही हदीस में जिनके फजाइल भी हैं अल्लाह के फजल से हम वो ईमानदारी के साथ बयान करते हैं। और हम जो फजीलत, जो शान जिसे अल्लाह ने दी है, हम उसमें बखीली नहीं करते कि बयान करने से उन्हें छुपाएं लोगों से, अल्लाह के फजल से बयान करते हैं। गज़वा खैबर के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, सही बुखारी में 4210 और सही मुस्लिम में 2606 नंबर हदीस है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, लउअतियन्ना हाज़िहि रायता गदन रजुलन यफ्तहुल्लाहु अला यदैहि युहिब्बुल्लाह व रसूला व युहिब्बुहुल्लाहु व रसूल। बड़ी अजीम फजीलत, बड़ी अजीम फजीलत, और ऐसी फजीलत के सहाबा कहते हैं जब अल्लाह के रसूल ने सैयदना अली के लिए ये अल्फाज बयान किए, ये अल्फाज पहले तो नहीं वाजे किया था कि किसके लिए मैं बयान कर रहा हूं, जब ये अल्फाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि अल्फाज पहले सुने तर्जमा, फरमाया कि मैं कल ये झंडा उस शख्स को दूंगा कि जिसके हाथ पर अल्लाह ताला खैबर को फतह करेगा, और वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करता है। देखिए कैसे अल्फाज, एक होती है यक तरफा मोहब्बत कि मैं तो मोहब्बत करता हूं अल्लाह से, अब पता नहीं अल्लाह भी मुझसे मोहब्बत करता है कि नहीं करता, मैं तो मोहब्बत करता हूं अल्लाह के रसूल से, पता नहीं अल्लाह के रसूल भी मुझसे मोहब्बत करते हैं कि नहीं करते। एक होती यक तरफा मोहब्बत, ये गारंटी
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر دنیا میں کسی کو دی تو وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے۔ فرمایا علی وہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اسی پر بس نہیں، اللہ اور اس کا رسول بھی علی سے محبت کرتے ہیں۔ کتنی عظیم فضیلت ہے۔ اور جب یہ الفاظ بیان کیے، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں اور صحیح مسلم دونوں میں الفاظ موجود ہیں، حضرت سہل بن سعد اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ساری رات ہم آپس میں گفتگو کرتے رہے کہ یہ کل جھنڈا کسے عنایت ہوگا۔ یعنی اتنے عظیم الفاظ اللہ کے رسول نے بیان کیے کہ اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اس شخص سے جسے کل میں جھنڈا دوں گا۔ تو ساری رات ہم آپس میں گفتگو کرتے رہے اور ہم میں سے ہر شخص کی تمنا اور خواہش یہی تھی کہ اسے یہ جھنڈا ملے۔ پھر کل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم صبح سویرے ہی پہنچ گئے، نیند ہی نہیں آئی رات میں، اتنی عظیم فضیلت۔ تو سارے ہم اللہ کے رسول کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب کدھر ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول کہ انہیں تو آنکھوں کی تکلیف ہے، آنکھوں کی کسی تکلیف میں مبتلا ہے۔ فرمایا کہ اسے پیغام بھیجو اور اسے میرے پاس بلاؤ۔ سیدنا علی کو بلایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوک مبارک، اپنا لعاب دہن سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں پہ لگایا تو آپ رضی اللہ عنہ کو صحابہ بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی۔ آپ نے دعا بھی کی لعاب لگانے کے بعد، تو ایسے حضرت علی ہو گئے کہ جیسے انہیں تکلیف تھی ہی نہیں۔ اللہ کے رسول کے لعاب دہن کی برکت سے، اللہ کے رسول کی دعا مبارک کی برکت سے فوراً اللہ تعالیٰ نے سیدنا علی کو شفا عطا فرما دی۔ پھر سیدنا علی نے کہا اللہ کے رسول کیا میں خیبر والوں سے، یہودیوں سے تب تک لڑتا رہوں جب تک کہ وہ ہم جیسے مسلمان نہ ہو جائیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جاؤ اس طرف لشکر لے کر چلے جاؤ اور سب سے پہلے میدان میں اترنے کے بعد انہیں دین اسلام کی دعوت دینا، انہیں ہدایت کی دعوت دینا۔ اگر تمہاری دعوت سے کسی ایک یہودی کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی تو اے علی وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بڑھ کر ہے، وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بڑھ کر۔ تو یہ روایت بھی سیدنا علی کی شان و عظمت پر ہے۔ پھر صحیح بخاری 4251 نمبر حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی سے فرمایا تھا انت منی وانا منکا، اے علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ یعنی ہم ایک ہی خاندان کے لوگ ہیں، ایک ہی خون ہے، ایک ہی ہم عزیز ہیں، آپس میں رشتہ دار ہیں۔ اے علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، سیدنا علی سے نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ پھر جامع ترمذی میں 3713 نمبر حدیث ہے، حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، مشہور حدیث ہے، ہر بندے کو یاد ہے۔ فرمایا کہ جس کا میں دوست ہوں، جس کا میں دلی محبوب ہوں، اس کا دوست اور دلی محبوب علی بھی ہونا چاہیے۔ یعنی یہ نبی علیہ السلام، اس میں شیعہ حضرات اختلاف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ جس کا آقا، جس کا سرپرست میں ہوں اس کا علی ہے، یعنی علی کی خلافت پر وہ اس سے دلیل لیتے ہیں کہ سیدنا علی نبی علیہ السلام کے بعد خلیفہ بننے کے مستحق تھے۔ ابو بکر کو خلیفہ بنا کر ان کے حق پر ڈاکہ مارا گیا، نعوذ باللہ۔ عمر نے خلافت سنبھال لی، پھر عثمان نے، پھر علی کو چوتھے نمبر پر۔ تو کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ، یہ بہرحال اختلاف کرتے ہیں۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ نے اس لفظ کا ترجمہ، اس لفظ کا جو مفہوم بیان کیا وہ فرماتے ہیں مولا سے مراد یہاں پر آپس کی جو اسلامی بھائی چارہ ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، رواداری ہوتی ہے، وہ یہاں پر مراد ہے۔ لہذا شیعہ کا اس سے خلیفہ بلا فصل علی رضی اللہ عنہ کو بنانا یہ مناسب اور صحیح نہیں ہے۔ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، کہ جس کا دلی محبوب میں ہوں اس کا دلی محبوب علی ہونا چاہیے، جس کا دوست میں ہوں اس کا دوست علی ہونا چاہیے۔ اور ابن ماجہ کی روایت حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فَأَخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ، نبی علیہ السلام نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا، فَقَالَ أَلَسْتُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ، صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا اے میرے صحابہ کیا میں مومنوں کی جانوں پر ان سے زیادہ حق رکھنے والا نہیں ہوں؟ قرآن کی آیت ہے نا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی مومنوں کی جانوں پر ان سے زیادہ حق رکھنے والے، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ قرآن کی آیت یاد دلاتے ہوئے سیدنا علی کا ہاتھ پکڑا اور لوگوں سے کہا کیا میں قرآن کے مطابق تمہاری جانوں پر
तुमसे ज्यादा हक रखने वाला नहीं हूं? कालू बला, तमाम साहबा ने कहा जी अल्लाह के रसूल क्यों नहीं? काला अलस्तु औला बिकुल्ली मुमिनिन मिन नफ्सी, क्या मैं हर मोमिन पर उसकी जान से बढ़कर हक रखने वाला नहीं हूं? कालू बला, सब ने कहा क्यों नहीं अल्लाह के रसूल? बिल्कुल। काला फहाजा वलिय्यु मन अना मौलाहु, फरमाया कि फिर ये जो अली, ये उसका दोस्त है जिसका मैं दोस्त हूं, ये अली उसका महबूब है जिसका मैं महबूब हूं। मैं आगे भी कई दफा बता चुका हूं, मौला और वली ये हम माने हैं लफ्ज, और ये लफ्ज जो है इसका कोई एक तर्जमा नहीं है। वली, मौला ये मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल होता है। मौला का मतलब रब भी है, मौला का मतलब मालिक भी है, मौला का मतलब दिली दोस्त भी है, मौला का मतलब दिली महबूब भी है, मौला का मतलब गुलाम भी है, मौला का मतलब आजाद करदा गुलाम भी है। तो अब मौका मुनासबत के एतबार से तर्जमा किया जाता है। जब मौला का लफ्ज अल्लाह के लिए इस्तेमाल होता है वहां पर हम रब और उसे मालिक के मानों में लेते हैं। जब मौला का लफ्ज किसी आम किसी शख्स के बारे में इस्तेमाल होता है या किसी उम्मती के बारे में, जिस तरह सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु के बारे में आपने इस्तेमाल किया, वहां पर मुराद है महबूब, दिली दोस्त। और गुलामों के बारे में भी, जिसे अरब के अंदर जिस गुलाम को आजाद कर दिया जाता था उसे भी मौला कहते थे कि ये मौला फुला है, यानी ये फुला का आजाद करदा गुलाम है। ये किताबें हदीस की भरी पड़ी हैं। तो आप यहाँ पर बिला फसल तर्जमा करके और सैयदना अली की बिला फसल खिलाफत मुराद लेते हैं, ऐसा ये मुनासिब और ये ईमानदाराना रवैया नहीं है। सैयदना अली हमारे सरों का ताज है, उनके पांवों की खाक हमारी आंखों का सुरमा है, लेकिन शरीयत के दायरे से बाहर ना निकले। मैं बार बार वही बात कर रहा हूं। फिर आप इस्लाम ने फरमाया कि जिसका नहीं हाथ पकड़ा हुआ था, फरमाया जिसका दोस्त और महबूब मैं हूं, उसका दोस्त और महबूब अली भी होना चाहिए। फिर मजीद इब्ने माजा के अल्फाज हैं, फरमाया अल्लाहुम्मा वाली मन वालाहु व आदि मन आदाहु, ऐ अल्लाह जो अली से मोहब्बत रखे तू भी उससे मोहब्बत रख, ऐ अल्लाह जो अली से दुश्मनी रखे तू भी उससे दुश्मनी रख। सैयदना अली वो अजीम शान शख्सियत है जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने ये दुआ फरमाई है, अल्लाह जो अली से मोहब्बत करता है तू भी उससे मोहब्बत फरमा, और जो अली से दुश्मनी और बुग़्ज़ रखता है अल्लाह तू भी उससे दुश्मनी और बुग़्ज़ फरमा। ये कैसे हो सकता है कि कलमा पढ़ने वाला जिस तरह हमें कह दिया जाता है ये मौला अली को नहीं मानते, ये अहले बैत की शान नहीं मानते, ये अहले बैत की फजीलत बयान नहीं करते, ये बिल्कुल झूठा इल्जाम हमारे ऊपर लगाया जाता। हम ये कहते हैं अहले बैत की मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा, हमारे ईमान की जान है। अहले बैत से मोहब्बत करना, प्यार करना हम अपने ईमान का हिस्सा समझते हैं, और उनसे बुग़्ज़ रखने वाला, उनसे दुश्मनी रखने वाला, उनसे नफरत रखने वाला मुनाफिक है, और वो मुसलमान नहीं हम उसे मानते जो अहले बैत से बुग़्ज़ रखता है और उनसे दुश्मनी रखता है। और सैयदना अली वो जात है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिनके मुतालिक मन आजा अलीयन फकद आजानी, फजाइल सहाबा इमाम अहमद इब्ने हंबल की किताब है, हसन सनद के साथ उसमें ये रिवायत है कि जिसने अली को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली से फरमाया था, सही मुस्लिम में 240 नंबर हदीस है और जामे तिर्मिज़ी में 3736 नंबर, फरमाया ए अली अन्नहु ला युहिब्बुका इल्ला मुमिनुन वला युबगिजुका इल्ला मुनाफिकुन, ए अली तुझसे मोहब्बत रखेगा तो मोमिन ही मोहब्बत रखेगा, और ए अली तुझसे बुग़्ज़ रखेगा तो मुनाफिक ही बुग़्ज़ रखेगा। और सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु वो अजीम शख्सियत है जो 10 अशरा मुबशरा सहाबा के अंदर शामिल है, यानी वो 10 सहाबा जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में जन्नत की बशारत दी। सुनन इब्ने माजा में जामे तिर्मिज़ी में ये रिवायत मौजूद है। 10 सहाबा अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, जुबैर, तलहा, अब्दुर्रहमान बिन औफ, अबू उबैदा बिन जर्राह, साद बिन अबी वकास, सईद बिन जैद, ये 10 सहाबा हैं जिनको नाम लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया की जिंदगी में अपनी नबूवत वाली सच्ची जुबान से जन्नत की गारंटी दी थी। और सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु वो शख्सियत है कि गज़वा तबूक के मौका पर गालबन नबी अलैहिस्सलाम ने सैयदना अली से कहा कि तुम पीछे घर में रहो और पीछे बच्चों बीवियों का ख्याल रखो, औरतों का ख्याल रखो। तो सैयदना अली ने कहा अल्लाह के रसूल आप जिहाद में लड़ने की बजाय मुझे औरतों और बच्चों के साथ छोड़ रहे हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था, फरमाया अली अंत बिन्नी बिमंजिलति हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबिय्य बादी, फरमाया अली तेरी मेरे साथ वो निस्बत है जो हारून की मूसा के साथ थी, यानी हारून और मूसा दोनों भाई थे। नबी अलैहिस्सलाम ने अपना भाई करार दिया सैयदना अली को, फरमाया अली
तेरी मेरे साथ वो निस्बत और ताल्लुक है जो हारून का मूसा के साथ था, इल्ला अन्नहु ला नबिय्य बादी, इल्ला ये फर्क ये है कि मेरे बाद नबी कोई नहीं। यानी वो तो फर्क था कि हारून और मूसा दोनों नबी थे। मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पर गए थे तो रात लेने, तो पीछे हारून को छोड़कर गए थे। इसी तरह आज मैं गजबे पे जा रहा हूं तो पीछे तुझे अपना नायब बनाकर जा रहा हूं। तेरी मेरे साथ वो निस्बत है जो हारून की मूसा के साथ थी, लेकिन फर्क यह है कि हारून भी नबी थे, लेकिन मेरे बाद नबूवत का सिलसिला अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खत्म कर दिया। इंशाल्लाह ये सिलसिला अगले जुमे भी हम जारी रखेंगे अहले बैत की शान व अज़मत के हवाले से। अल्लाह रब्बुल इज्जत से मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हमें शरीयत के दायरे में रहते हुए अहले बैत की शान व अज़मत का इकरार करने की, उसे मानने की, उसे बिला झिझक बयान करने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत अहले बैत से, आले रसूल से दिलो जान से बढ़कर हमें मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला अहले बैत और आले रसूल की सीरत पर चलने की अल्लाह हमें उनके तौर तरीके पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दाअवाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।